very friendly. All of you know him. He never shows that he's very senior person. That is a very important thing. Very humble, and exactly he does whatever Radhesham Prabhu says. He joined our ISKCON in 1997, and then full time he joined in 2004. And from there he is doing so many services in temple, all kind of services, not only top services. Book distribution. I know he was involved in 2010 in book distribution marathon. That was the first book distribution marathon in Pune, 2010. Then all temple, if you see, whatever changes are happening in the temple, how the temple was in 2004 and how it is now. If those who are coming old from many years, they will understand what changes he has done. Brought so much donation, and people have given donation not because of any other thing, because of his simplicity, purity, and the purpose of service. Currently, is a TMC member in ISKCON camp and handling all the department and simultaneously running Bhakti Shastri courses also. 3 to 4 Bhakti Shastri courses. He will have a lot of yatras also. All the devotees love him as a devotee. Not because he's some authority, some nothing. Just because of his devotional service, all the devotees respect him and love him. I also always respect and love him because of his very nice devotee, not because of the position. So therefore, let's welcome, let's get Lalit Madhav of BYC family, and I request him to again come and give his association and simplicity to all of us. Hari Bol. Let's chant one time Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna. Prabhuji, I'll just go for 5 minutes. Some devotees have come to meet me, and I will join in 10 minutes. Okay? Yes, Prabhu. Should I start? So, because Yes, next yes, yes. 8:30 will start, we will close. You So can I'll make do. him co-host No, if I you want don't. to share something. No, I don't do share. Whatever I just speak, I'm not so Yeah, you can technical. share your heart. I'm not having something to say. I'll try to just repeat Prabhu's past time. Yes. Yeah, yeah, yeah. There you go. So, Maximum devotees can on their videos if you want, so that Prabhuji will be, he will see the you. That is not nice. Okay. Thank you. Carry on. Prabhu will do 5 minutes skits also. No problem. Isn't it? Yes, I yes. think in background they will not repeat because there will be a lot of noise. Isn't Yes, it? correct. Just do Yes. kirtan for 5 minutes and then start. Yes, sir. Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Rajana Yashodanandana Brajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जयम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसलेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज, ऑल गुड्स, ऑल गुड्स टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। Am I audible, Prabhu? Yes, Prabhuji, your voice is clear. So I'm very grateful to all the devotees here, PYC Kharadi devotees and also His Grace Madhav Sahabu, Sir Hindi. तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया है भगवान का स्मरण करने का, क्योंकि शास्त्र में से कहा गया है कि सारे जो विधि विधान है पूरे दुनिया में, जितने भी शास्त्रों में जो विधि विधान है, उसका एक ही पर्पस है, वो है कि भगवान को यह हमेशा याद रखना और भगवान को भूलना नहीं। तो कंडीशन जीवात्मा के लिए भगवान को याद करना हमेशा बहुत मुश्किल रहता है, और जो वैष्णव होते हैं हमेशा जब ऐसा कुछ अवसर दे जिससे हम भगवान को याद कर पाए, इसलिए आप सब भक्तों का मैं बहुत आभारी हूँ। जो माधव से अपन जो बताया, तो दे आर वेरी एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर मी एंड इट इज so I'm feeling very encouraged here among all the devotees here. इनफैक्ट मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब लोग इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। मैं जैसे भी रिसेंटली जब मैं रथ यात्रा में जब आया था, आप लोगों ने इतना सेवा, इतना अच्छे से अपने रथ यात्रा मनाया। आई थिंक अगली बार वो बहुत सुंदर होगा। इस बार तो पहला रथ यात्रा था, अगली बार जो होगा इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रैंड सक्सेस। और अभी ऐसे हम अलग अलग प्रकार से फेस्टिवल मना रहे हैं, सो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी वहाँ अच्छा सेंटर बनाएंगे और we'll have lots of devotees there. So thank you for giving me opportunity to serve all of you. हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान कृष्ण के एक बहुत सारी भगवान लीलाएं की उसमें से एक लीला जो है शकटासुर का उद्धार, उसके ऊपर हम चर्चा करने के प्रयत्न करेंगे।
तो मैं जो बेसिकली शुरुआत में शकटासुर के पूरा जो लीला पहले बताएंगे और फिर बाद में उनसे हम भक्तिविनोद ठाकुर के जो कृष्ण संहिता और जैव धर्म से उन्होंने क्या बताया, हमें क्या सीख मिलती है, इससे हम वो सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये मैं जो श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बुक पढ़ा उसमें, तो ये जो जो लीला है बहुत छोटा लीला है शकटासुर, पर ये बहुत सुंदर और बहुत ही हमें सीख देने वाली लीला है। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं। आई फर्स्ट ऑफर प्रेयर्स, आई फॉरगॉट टू ऑफर प्रेयर्स फर्स्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये शकटासुर जो है लीला में, तो श्रील प्रभुपाद जी के चैप्टर में पहले भगवान कृष्ण के कथा के श्रवण के बारे में उनके महत्व बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है उनको भगवान कहते क्योंकि भगवान ये 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान हमेशा, भगवान कृष्ण जो है हमेशा उनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, जैसे कि ऐश्वर्य से समग्र सारे पूर्ण मात्रा में उनके पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। जैसे कि उनके पास रिचनेस है, बल है, संपत्ति है, उनकी फेम, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा आगे पीछे होगा, उनका ज्ञान है, उनकी जो सुंदरता है, उनका वैराग्य है, ये पूर्ण मात्रा में उनमें हमेशा रहता है। भले वो छोटे से जब 3 दिन के बच्चे भी हो, या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान 125 साल के हो, ऐसा नहीं है कि भगवान जब 125 साल के तब उनके पास पूर्ण ऐश्वर्य थे और 3 दिन के बच्चे में ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा भगवान होते। प्रभुपाद जी अलग कहते हैं कि भगवान को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, भगवान हमेशा भगवान रहते। ही इज नॉट मेड गॉड, वो सब बने नहीं, भगवान हमेशा शाश्वत रूप में भगवान है। तो भगवान अपने अलग अलग रूपों में आके अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग अवतारों द्वारा। और ये जो कंडीशन जीवात्मा जो है, जो उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है उनको भगवान के बारे में सुनने का। अलग अलग अवतार जब भगवान लेते हैं तो भौतिक जगत में जब आते हैं भगवान आविर्भाव लेते हैं, तो उनको उनके बारे में सुनने के लिए बहुत सारा अवसर मिलता है। इसलिए भगवद गीता में, और ये जो भगवान के जो सारे जो क्रियाकलाप है उसको भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, सर दिव्य है सब, कोई भौतिक स्तर पे नहीं है। भगवान के कृष्ण की लीला हो, राम की हो, भरादेव की हो, नरसिंह देव की हो, कूर्म की लीला हो, भगवान कूर्म की हो, या फिर बाकी कितने भी अलग जो अवतार सारी जो है वो सब दिव्य स्तर पे। वो हमें कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि सब भौतिक स्तर पे। और
ये ऐसे भगवान की लीलाओं को सुनने के बहुत सारे हमें फायदे हैं। हम जब भगवान की लीला सुनने के पर सुनते हैं, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। नॉर्मली जो जीवात्मा है भौतिक जगत में, उनको है ना ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के नॉवेल है ना, डिटेक्टिव, ऐसे कुछ ऐसे कादम्बरी, मराठी में तो कादम्बरी कहते हैं मराठी में नॉवेल की, या फिर ऐसे कोई ऐसे फिक्शन किताबें जो है वो पढ़ने में उनको बहुत या फिर ड्रामा होता है, ऐसे उनको उसको पढ़ने में बहुत रुचि रहती है। तो इसलिए भगवान यहाँ थे कि भगवान को मालूम है कि हमारे जो उनके जो सारे जो बच्चे जो भगवान से जो जो बिछड़ गए, उनको मालूम है कि इनको अभी ऐसे अलग अलग आदतें लग गई है। कुछ तो ऐसे कुछ चाहिए जिसे उनको उनको माइंड के अंदर कुछ तो उनको आकर्षित करे। इसलिए भगवान जो आते हैं अलग अलग अवतार में, वो अलग अलग प्रकार से वो लीलाएं करते हैं। तो तो भगवान के बारे में जब लीला सुनते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे। मान जब हम कोई ऐसे बाहर के कोई ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति के कुछ ऐसी कथाएं सुनते हैं, कथा मतलब जो भी उनके बारे में जो कभी कभी जैसे कहानियां होती है, ऐसे मन घड़त चीजें होती है, तो हमारा मन शुद्ध नहीं होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत क्लियरली लिखती है चैप्टर में कि वो व्यक्ति जो जैसे ही वो भगवान के बारे में सुनने का प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति दिव्य स्तर पे आ जाता है। मतलब सुनने मात्र से व्यक्ति दिव्य स्तर पे आ जाता है। और ये भगवान की कथा इतनी सुंदर है कि वो हम जैसे सुनते हैं तो हमारे मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। इसे वो बोलते हैं कि प्लीजिंग टू द माइंड। हम जब सुनेंगे भगवान कथा तो हमको बहुत, हमें मन को बहुत संतोष देने वाली है। इसलिए कहते हैं, गोपियां कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम तव कथापहम तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये कथा भगवान कैसे अमृत देने वाली है, स्पेशली कानों का अमृत देने वाली है। तो ये हम जब कथा जब सुनते हैं भगवान के बारे में तो हमको बहुत हृदय में एक प्रकार से संतुष्टि मिलती। जैसे अब हमको ये कैसे संतुष्टि का अनुभव हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा होता है और जब उसके सामने बहुत अच्छा प्रसाद का, अभी आज हम तो ऑनलाइन अभी आज है, तब एक्चुअली जब हम कभी कोई जैसे फेस्टिवल में जब होता है, कोई जैसे अच्छा प्रसाद बनाया होगा और आपको बहुत भूख लगी है, और आपको इतना अच्छे से आपको पूरा प्लेट भर के प्रसाद दिया गया, तो प्रसाद लेने का उसके संतुष्टि मिलती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसी तरह जब व्यक्ति इतना भौतिक जगहों से त्रस्त रहता है, इतना वो उनके मन में पीड़ाएं आती रहती है, जैसे ही वो भगवान के बारे में सुनने का प्रयत्न करता है, वो उसका मन शांत हो जाता है, वो उसको सुकून मिलता है उसको। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भगवान की कोई कथा सुनते हैं तो हमारा जो हृदय के अंदर जो जो मैल है, कंटेमिनेशन है, जो अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, वो साफ होते हैं। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावग्नि, तो ये सब हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो सब अ, निकल जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के भक्ति में नौ प्रकार, नौ नौ विधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो स्पेशली ये नौ विधियों में से सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है, प्रथम विधि है जो श्रवणम। श्रवणम जो है जो है हमें भगवान के सबसे शुरुआत में हमें भगवान के कांटेक्ट में आता है। मैं परसों में शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था श्री श्री राधा कुंज मेरे मंदिर में। हर बुधवार को प्रवचन देते प्रभुपाद जी। तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि नौ विधा जो भक्ति है, तो श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम अर्चन दास वंदनम दासम साख्यम आत्मनिम। तो नौ विधियां जो है, जैसे पहली विधि परफेक्ट है तो दूसरे में उसका अधिकार मिलता है, मतलब वो हम कर पाते हैं। तीसरा तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप है वो। हाँ, जितना हम श्रवण करेंगे उतना हम कीर्तन कर पाएंगे, जितना हम कीर्तन कर पाएंगे उतना हम श्रवण कर पाएंगे। तो ये जैसे कैपेसिटी है, वैसे हम जैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ता है भगवान के श्रवण करने में, उतना ही कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा कीर्तन करने में। जितना हम कीर्तन कर पाएंगे उतना हम हमारा स्मरण हम कर पाएंगे। और जैसे स्मरण करेंगे, प्रभु जी इसमें भी यही लिखते हैं, जैसे हम भगवान के बारे में सोच सुनना शुरू करते हैं, तो जैसे फिर कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, फिर स्मरण करते हैं, तो अर्चनम वंदम तुरंत। तो चौथा स्टेप है अर्चनम है, भगवान की आरती करना, भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवाएं करना।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये श्रवण जो है हमें भगवान के प्रति हमारा जो जो ओरिजिनल जो हमारा जो पहले का जो सेवा भावना है वो जागृत करता है श्रवण से। और जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रभुपाद ने लिखा है इसमें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सेवा भावना जागरूक है तो वो ही बिकम्स एलिजिबल टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज। देखिए क्या लिखा है, मतलब मैं थोड़ा पढ़ा तो 2-3 बार पढ़ना, प्रभुपाद ऐसा क्या लिखा है कि जैसे हमारा सेवा भावना भगवान के प्रति जागरूक होता है, वो भक्त क्या उसकी वो एलिजिबल, मतलब वो क्या उसको एलिजिबल क्या बोलते हैं, ही बिकम्स क्वालिफाइड टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज। To be a friend of the devotee is not easy to say. It is not. He's quite advanced in one sense. तो मतलब कि ये स्मरण होगा कैसे, तो श्रवण से शुरू होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मैंने कृष्णा थीसिस जो बुक लिखा है मैंने, ये लिखा है ये सब पर्पस के लिए लिखा है मैंने। हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो, हमारे मन को संतुष्टि मिले, हमारे मन के अंदर जो हृदय के जो जो गंदगी वो धुल जाए, हमारा जो पुनः जो भगवान के जो संबंध प्रस्तावित हो, हमारा सेवा भाव जागृत हो हमारा, और फिर हम हमारे भक्तों के साथ हमारा मित्रता हो। ये सब के लिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि मैंने कृष्ण चरित्र लिखा है बोले। इसलिए भगवान जो है अपने कृपावश ये भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, मगर जो मायावादी जो जो निराकारवादी जो होते हैं, जो एथिस्ट जो लोग होते हैं, वो भगवान को ऑर्डिनरी समझते हैं। वो भगवान को कैसे समझते हैं, करके एक साधारण व्यक्ति समझते, या फिर कोई थोड़ा ऐसा थोड़ा बड़ा व्यक्ति होगा, कोई थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और वो उनको भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं हो। इसलिए भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं अवजानते मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, कि जो मूर्ख लोग जो होते हैं एक्चुअली भगवान को जान नहीं पाते, वो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते, मानुषिम तनुमाश्रिता, कि वो व्यक्ति है बस। मगर भक्त जो उनको समझ कि भगवान दिव्य है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका शरीर जो पूरा दिव्य है उनको जानते हैं। तो ये एक समय की बात है वृंदावन के अंदर। अभी ये एक बहुत स्पेशल लीला क्यों है, क्योंकि ये जो लीला के अंदर ऐसा बताया कि 2 लीला एक साथ में हुई एक्चुअली। कि उस दिन जब या नॉर्मली जैसे जब बच्चे का जन्म जब होता है तब बच्चा पहले तो ऐसे सोया रहता है, तो उसको ऐसा उसको पलटी जो उत्थान बोलते हैं, उसको उत्थान उत्सव बोलते हैं, कि कुछ महीनों तक वो ऐसे सोया रहता है, उसको इतना शक्ति नहीं रहता कि ऐसे वो पलटी करे अपने आप को। तो ये भगवान कृष्ण जो है ये 1 साल के बाद ऑलमोस्ट ये उन्होंने क्या किया, अपने आप को पलटी मारा। पलटी तो उसको संस्कृत में उसको कहते हैं उत्थान उत्सव कहते हैं। भगवान जो अभी आगे जाके रेंगने लगेंगे भगवान, तो उसके पहले मगर भगवान ने पहले पलटी मारा है। देखिए इसलिए तो मैं पहले बता रहा था कि भगवान जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे छोटे बच्चे भी जो होते थे हमारे घर में, तो भी वैसे कभी पलटी मारते हैं, वो 6 महीने ऐसे रहते हैं, वो तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। मगर भगवान में और साधारण बच्चों में बहुत अंतर है, वो समझना चाहिए बहुत क्लियरली। और उस दिन जो था भगवान का आविर्भाव दिवस था, जन्माष्टमी था। तो दोनों चीजें साथ में आई थी। भगवान कृष्ण ने अपने आप के पीठ के बल उन्होंने अपने अपने आप को उल्टा किया था, और उस दिन भगवान का आविर्भाव दिवस था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये इसको एक्सपेशली जन्माष्टमी कहते हैं। अभी हम मनाने वाले 4 तारीख को जन्माष्टमी, तो ये पहला जन्माष्टमी था, है ना। जो पहला जन्माष्टमी जब था, जब भगवान उल्टे हुए, तब यशोदा माई नंद महाराज ने बहुत अच्छे अपने आप को नहा धोकर कपड़े पहने, और जो कृष्ण को भी अच्छे से उन्हें स्नान कराया और अभिषेक कराया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको टेक्निकली इसको अभिषेक कहते हैं। और जन्माष्टमी में देखेंगे तो आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों घर में अभिषेक होता है भगवान का। कहाँ भी प्रभुपाद जी कहते हैं सारे हिंदू जो भी कैसे भी प्रथा हो वो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो उन्होंने जन्माष्टमी मना, उस दिन बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सब लोग सारे जो गोपियों को सबको घर पे बुलाया था नंद भवन में, और सब लोग सज धज के आए थे। सारे जो अलग अलग ढोल नगारे सब ऐसे तुतारियां सब बज रही थी। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था। नॉर्मली कोई भी कुछ फंक्शन में ब्राह्मणों को बुलाना ये आवश्यक है, तो यहाँ से ब्राह्मण को बुलाया था। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा है कृष्ण जो है
वो अभी 1 साल पूरा हो, उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो उन्हें सारे ब्राह्मण को बोला था, और वो ब्राह्मण जो प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली लिखा है उधर कि जो ब्राह्मण थे वो बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण थे। तो जब उन्हें, क्योंकि बोले कि क्यों क्वालिफाइड क्यों बोला गया, क्योंकि वो उनको नंदा महाराज ने बुलाया था वो कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, उनको ब्लेसिंग देने के लिए। तो वहां कुछ क्वालिफिकेशन देते हैं कि ब्राह्मण वो सब क्वालिफाइड थे, इसलिए जब ये क्वालिफिकेशन होगा तब जाके ब्राह्मण के आशीर्वाद काम आएंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद ने 5 क्वालिफिकेशन बताए, 5 उनकी गुणवत्ता बताई ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मण ये थे, इसलिए उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण को आशीर्वाद मिलेंगे करके। तो प्रभुपाद जी कहते पहले तो ये जो ब्राह्मण थे सब, वो उनमें द्वेष, देवर नॉन एनिमीज, उनमें द्वेष नहीं था उनमें। वो उनके हृदय के अंदर की सबके प्रति करुणा थी। वो सिर्फ खुद के भले का सोच रहे, वो सबके भले के बारे में सोच रहे थे। तो द्वेषी नहीं थे वो। और वो कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला था उन्होंने। बहुत बड़ा कलयुग के अंदर ये बोलना कि कोई किसी ने कभी झूठ नहीं बोला, ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। और वो कभी भी, वो लोग, ये दूसरा था। तीसरा ये था कि वो कभी भी प्राउड, मतलब अहंकारी नहीं थे वो लोग। और वो लोग कभी उन्होंने हिंसा नहीं किया, हिंसक नहीं थे, कभी नॉन वायलेंट थे वो। और अपने कभी पद के बारे में कभी उन्होंने फॉल्स प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब प्रेस्टीज को क्या कहेंगे हिंदी में? I'm not able to get the word. आपको समझ में आया ना? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, अ, प्रतिष्ठा, वेरी गुड, प्रतिष्ठा। वो कभी उन्होंने अपने कभी झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भागे नहीं। तो ये 5 गुण थे। एक तो वो द्वेष नहीं था उनमें, वो कभी झूठ नहीं बोले थे, वो कभी, उनमें कभी अहंकार नहीं था, उनमें वो अहिंसक थे, ना कभी हिंसा नहीं की थी, और वो झूठे प्रतिष्ठा कभी भागे नहीं थे पीछे। बोले 5 गुण थे ब्राह्मणों में, इसलिए कहते कि वो जब आशीर्वाद देंगे तो वो जरूर काम करेंगे। तो इसलिए नंद महाराज को पूरा विश्वास है। नंद महाराज ने कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाया था। और यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से ये ब्राह्मण अलग अलग प्रकार से वो श्लोक आके वो उनका मंत्रोच्चारण करके आशीष दे रहे थे कृष्ण को। मगर प्रभु जी कहते हैं, मगर अभी ये सब ये बहुत पॉसिबल है, मगर अभी ये स्पेशली कलयुग में पॉसिबल नहीं है। मगर कलयुग में हम सब जानते हैं, कलयुग के अंदर जो जो ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण मिलना इतना आसान नहीं है। कलयुग के अंदर जो ब्राह्मण जो है इतने ऐसे, कभी कभी सुना था कि शादी के अंदर वो अंत संस्कार का भी मंत्र बोलते थे कभी कभी। तो किसी को कुछ समझता नहीं है, और ये ब्राह्मण को समझ नहीं होता है, तो सिर्फ पैसे के लिए कार्य करते। तो कलयुग में ऐसे ब्राह्मण मिलना बड़े बड़ा रेयर है, ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में हमने हमें सबसे बड़ा यज्ञ दिया है करने के लिए, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, प्रभुपाद कहते हैं कि यदि ब्राह्मण नहीं है तो मगर कोई बात नहीं, मगर हमें प्रभुपाद भगवान चैतन्य में हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, उससे हम सबको भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। तो तो जैसे अ, ये ब्राह्मण लोग मंत्र गा रहे थे, तो गाते गाते क्या हुआ, अचानक कृष्ण को नींद लग गई। कृष्ण को आंखें बन के सोने लग गई। तो यशोदा ने कृष्ण को लिया, और एक ऐसा छकड़ा था, या शकट, छकड़ा कहते हैं उसके, जो एक ऐसा बैलगाड़ी ऐसा था। तो बैलगाड़ी को बैल नहीं लगे थे, वैसे वो रखा था, जैसे आप गांव में देखा होगा, कभी कभी आप कुछ सामान रख देते बैल के बैलगाड़ी के ऊपर, और बैल को बाजू में लगा देते। तो उसी तरह यहाँ 2 पहियों के बीच में कृष्ण, यशोदा मैया ने कृष्ण को रख दिया। जैसे भी वो कृष्ण सो गए तो सोने दो उनको, क्योंकि उस समय क्या था, भगवान का पहला आविर्भाव दिवस था। तो इसलिए तुरंत भगवान को आना था। सॉरी, बहुत सारे गोपियां आए थे, सारे जो गेस्ट आए थे, सबका ख्याल रखता था। यशोदा मैया फिर बहुत बिजी हो गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो गए, सबको स्वागत करने लगे, सबको अलग प्रकार की सेवा करने में व्यस्त हो गए। और यहाँ पे एक चीज हुआ कि कृष्ण उड़ गए। कृष्ण जब उड़ गए, और नॉर्मली आपने देखा होगा, जो माताओं को मालूम हो, जैसे ही बच्चा सोने के उठता है तो उसको सबसे पहले उसको कुछ तो खाने के लिए चाहिए, या फिर उसको दूध चाहिए।
अभी कृष्ण उठ गए और वो चिल्लाने लगे जोर से, वो रोने लग गए, चिल्लाने रोने लग गए, और बहुत रो रहे थे। मगर पॉइंट क्या हुआ था कि इतने सारे लोग आए थे आजू बाजू में, तो भगवान के रोने की आवाज किसी को सुने ही नहीं थी, या ये भगवान बहुत चिल्ला रहे। और एक्चुअली आप देखेंगे ना, जब बचपन में मतलब आप सबको अनुभव होगा, जैसे उठते हैं तो उसको बच्चे को भूख लगता ही है, वो वेरी नेचुरल है एकदम। तो ऐसे भगवान रो रहे थे, मगर किसने उनका ध्यान दिया नहीं। मगर तो भगवान ने क्या किया, अपने छोटे से जो छोटा सा इतना सा भगवान का चरण कमल, उससे उन्होंने स्पर्श किया वो छकड़े को। वो छकड़ा जोर से नीचे गिर गया, धड़ाम करके आवाज आएगा। उसमें बहुत सारे पीतल के अलग अलग धातुओं के जो बर्तन रखे हुए थे, वो पूरा छकड़ा टूट गया, उसका जो बड़ा जो पहिया था वो बाहर आके गिर गया, बहुत जोर से आवाज आया एकदम। तो सारे लोग आजू बाजू, सारे जो नंद महाराज, यशोदा माई, सारे जो गोपी सब सामने आ गए सब। तो सारे आ गए और देखे, अरे क्या हो गया ये अचानक, मेरे कुछ हुआ नहीं है, अचानक ये कुछ हवा नहीं आया है, कुछ कुछ था नहीं। और नॉर्मली ऐसे कभी होता नहीं कि ऐसा ये जो बैलगाड़ी जो ऐसा वो टूट जाएगा अचानक। तो सब लोग सोचने लगे कैसे हुआ, क्या हुआ, शायद कोई भूत आया था क्या शायद, या कोई ऐसा कोई इविल कोई स्पिरिट, मतलब कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने हमारे कृष्ण को तकलीफ देने के लिए ऐसा कुछ किया क्या। तो सब विचार में लगने लगे, सब विचार सब, और विष्णु में थोड़ा घबरा गए थे, अरे मेरे कृष्ण को क्या ऐसा क्या हुआ अचानक। तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे वहां सब। तो बच्चों ने बताया कि नहीं नहीं, अरे ये ऐसा नहीं करे, भगवान ये कृष्ण ने ना लात मारा ये छकड़े को, और ये छकड़ा टूट गया। तो सारे नंद महाराज, सो सारे जो ग्वाल बाल जो थे, ये कैसे पहुंचे, छोटा सा बच्चा है ये, और ये ऐसे लात मारने से कैसे कुछ होने वाला है, वो कैसे टूट जाएगा। तो उन्होंने उन पर विश्वास नहीं रखा, तो कैसे पॉसिबल है। मगर विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर कहते हैं ये इसमें कमेंट्री में कि नॉर्मली जब बाकी सारे अवतार में जब भगवान अवतार आविर्भाव लेते हैं, जैसे कि वामन भगवान ने जब अवतार लिया था, तो उनके चरण कमल को ऐसा ऊपर लेके जाना, उनका उन्होंने आकार बड़ा किया था। और दोनों लोग पूरा 14 लोग उनको एक एक पैर से पूरा उन्होंने मापा था, और वो ब्रह्मांड को छेदा के वहां से छेदा था उधर तब तक। या फिर भगवान नरसिंह जो आए थे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो उन्हें अपने आप की शक्ति उन्होंने डालनी पड़ी उनको मारने के लिए। दे हैव टू एक्सर्ट देमसेल्फ, कुछ करने के लिए। मतलब भगवान कृष्ण की लीला में भगवान कभी एक्सर्ट नहीं करते। बोले यहाँ भगवान के चरण कमल जो है, वो कहते कि एक नए झाड़ में जो जो पत्ते रहते हैं ना, एकदम कोमल पत्ते, उस समय उनके एकदम कोमल पत्ते थे, उनके एकदम छोटे से नन्हे से लाल चरण कमल थे। बोले ये ऐसे थे कि वो आ, उनको कुछ शक्ति वापरनी पड़ी, जैसे बाकी के अवतार में उनको लगता है कि थोड़ा शक्ति उनको प्रदर्शन किया, यहाँ ने सिर्फ थोड़ा टच किया और पूरा गिर गया। क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम, भगवान खुद मतलब अपनी शक्ति यूज कर सकते हैं, शक्ति नहीं भी यूज करते हैं। उनको जरूरी नहीं कि कुछ करने के लिए उनको शक्ति दिखाना ही पड़ता है। तो तुरंत जब यशोदा माई ने देखा, कह रहे मेरा बच्चा जो है ये अ, गिर गया, जो गिर गया, तो तुरंत यशोदा माई ने अपने गोदी में लिया, और सारे ब्राह्मण बोला आप क्या कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए मेरे बच्चे को, कृष्ण को रक्षण करने के लिए। और उस समय यशोदा मैंने अपना अपना स्तनों का दूध पिलाना शुरू किया कृष्ण को। तो प्रभु जी आत्मा ने कहते कि भगवान कृष्ण दूध पीने लग गए। तो मुझे कहते हैं ऐसा कि वहां जैसे माँ जब अपना बच्चे जब दूध पिलाती, बच्चा जब दूध पीता है, इसका मतलब समझना चाहिए कि बच्चा जो है वो डेंजर से बाहर है, अभी वो डेंजर से बाहर हो गया। जब यदि बच्चा दूध पी रहा है तो तब ऐसा होने लगा। और यहाँ ब्राह्मण लोग अलग अलग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और तो उसी तरह यहाँ शक्तासुर जो है, ये लीला यहाँ समाप्त है। तो यह शक्तासुर है कौन। तो गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कि ये शक्तासुर है कौन। शक्तासुर जो है वो एक्चुअली एक उत्कच नाम का एक राक्षस था, जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, हिरण्याक्ष का बेटा था। तो ये चक्षुषा मनवंतर में ये लीला हुई थी। उस समय जब हिरण्याक्ष का जो ये बेटा था उत्कच, वो
कि वो राक्षस था थोड़ा, उसमें वो थोड़ा शरारती था राक्षस। एक बार वो गया लोमस ऋषि के आश्रम में गया, और लोमस ऋषि के आश्रम के आजू बहुत सारे पेड़ थे, उसको पेड़ को उखाड़ने लगा वो। पेड़ को उखाड़ने लगा तो ये लोमस को आया गुस्सा, अरे ये क्या है, कौन है ये? तो उन्हें गुस्सा, उन्हें शाप दे दिया उनको कि तुम ऐसे उटपटांग हरकतें कर रहे, तुम क्या करो, तुम्हारा शरीर जो है वो वायु का बन जाए। इसलिए जो ये जो शकटासुर था, जो ये उत्कर्ष जो था, शकटासुर जो है वो हवा के रूप में आया था। कंस ने भेजा था उसको, कंस का वो सेवक था, कंस ने उसको भेजा था आ, हवा के रूप में। जो शकट में अंदर घुस गया था और वो शकट को तोड़ने वाला, तो वो भगवान के सिर पे उसको तोड़ने वाला था शकट को। और भगवान तो भगवान है, भगवान को कौन कुछ कर सकता है। तो ये जो था, फिर बाद में जो उत्कर्ष जो था उसको बड़ा बुरा लगा, अरे बोले कि अरे मैंने क्या गलती किया, मुझे माफ करो, मतलब वो ऋषि के चरणों में गिर गया, और बड़ा उनको बहुत बुरा लगा कि अरे अरे ऐसा कैसे मैंने किया। तो उस समय अ, जो ऋषि जो थे बोले ठीक है, तुम्हारा अगले मनवंतर में, अगले मनवंतर में जब वैवस्वत मनवंतर में भगवान कृष्ण आएंगे और आपका, उनके चरणों से आपका उद्धार करेंगे। देखिए एक मनवंतर मतलब मालूम है कितना है? जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 72 युग, सॉरी 71 युग का एक मनवंतर होता है। तो ये चीज, ये जो लीला हुई थी नरसिंह की, वो चक्षुधा मनवंतर में हुई थी। और लवस मुनि बोले अरे तुमको ऐसे रहना पड़ेगा, कब तक? दूसरे मनवंतर तक, चक्षुषा वैवस्वत मनवंतर तक। जब भगवान कृष्ण, मतलब ये अपना जो अभी चल रहा है, जो वैवस्व मनवंतर चल रहा है, जो विवस्वान मन में प्राहम, जो तो ये अपना ये मनु विवस्वान, तो वैवस्वत मनु जो है, हम जो अभी हमें ये हमारा करंट चल जाए मनवंतर अवतार है, उसमें जब भगवान आएंगे तो उस समय उनके चरणों से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो देखिए, तो राक्षस था, मगर अब फायदा ये हुआ कि अरे जब कोई साधु के संग में आता है, भले कोई राक्षस भी ना हो, उनका शाप भी जो है अवतार का मान हो जाता है। जैसे हम देखते हैं नल कंवर मणिगुरु भी जो है, वो इतने अहंकारी, इतने उनके हृदय में इतना प्राइड मतलब आ गया था, तो पैसों के कारण और शिव जी के संग के कारण। तो वो अपने नग्न अवस्था में उन्होंने नहा रहे थे मंदाकिनी गंगा में, तो भी उन्होंने नारद मुनि को देखा नहीं, नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया। तो नारद मुनि उनको शाप दिया कि तुम क्या, तुम झाड़ बन जाओ, तुमको नग्न होना तो झाड़ बन जाओ। तो जब ऐसा शाप मिला तो उनको बहुत बुरा लगा, मरो बोला क्या कुछ तो कीजिए, मैं चिंता मत करो, तुमको नंदा महाराज के घर में झाड़ जमने का जन्मने का मिलेगा, और तुम कृष्ण की सारी लीला को देखोगे। तो ये शाप नहीं हुआ एक्चुअली, ये जो है वो भगवान का, कृष्ण का, गुरु का आशीर्वाद है। तो जैसे यहाँ भी लोमस मुनि ने जो आशीर्वाद शाप दिया कि तुम्हारा उद्धार, कि तुम एक वायु का शरीर मिले तुम्हें, तो देखा तो फिर भगवान ने मगर आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये कर्स मिला। तो ये जो शकटासुर है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपने कृष्ण संहिता और जैव धर्म में, ये शकट कौन है ये? तो पहले शकट जो है एक्चुअली हमारा हृदय के समान है। हमारा हृदय जो है वो छकड़े के समान है बने, और वो हृदय के अंदर हमारा बहुत सारा लोड है। लोड मतलब क्या कहते हैं उसको, वजन है। तो उसमें कौन सा वजन है हमारे हृदय के अंदर? तो हमारी पुरानी आदतें हैं जो है, या फिर हमारा जो प्राइड, प्राइड इसका कौन सा एक, प्राइड को क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग द, अहंकार, नॉट अहंकार बट अभिमान, अभिमान, अभिमान। अभिमान, अभिमान इज अ मोर बेटर वर्ड। अभिमान ये शब्द था, तो ये जो हमारे फैमिली प्राइड रहता है। अब बोलो फैमिली प्राइड क्या होता है, कोई बताना चाहिए व्हाट इज फैमिली प्राइड? Someone have to say what is family pride? We are proud of in which family we are born, or in which city or in which state, like that. जैसे मैं ब्राह्मण कॉलम, समझे ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, मैं यूपी का ब्राह्मण हूँ, मैं आई एम जस्ट गिविंग, मैं किसी का कुछ ऐसा पर्सनल ले नहीं रहा हूँ, या कुछ ऐसे कुछ देशस्थ कोकणस्थ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो है ना या किसी का कोई लीनियज से कनेक्शन होता है ऐसा, कि मैं जो है भोसले परिवार से हूँ, शिवाजी महाराज के परिवार, तो एक प्राइड रहता है
हमारा फैमिली प्राइड कि मेरे, या कभी कभी हम जो है ना, कोई वैष्णव परिवार जन्म लेता है, इतनी भक्ति तो नहीं की थी मगर कब वैष्णव जन्म लेते और कहते मैं वैष्णव परिवार जन्म लेता हूँ, तो एक प्रकार से हृदय के अंदर एक अहंकार रहता है, अभिमान रहता है कि मैं थोड़ा ऊपर हूं लोगों से। तो ये है ना, अपने हृदय के ऊपर एक वजन है। हालांकि कुछ किया कुछ नहीं, वो भले से हम भले बड़े बहुत अच्छे फैमिली से आए होंगे, मगर वो फैमिली आने के बाद हमने ऐसे कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे थे। हमारे देखेंगे आदत, तो हमारे आदत इतने ऐसे लगने थे कि हम बसे बड़े बहुत अच्छे घराने के थे, बहुत सारे बुरे आदत भी थी हमारी। तो इसको शकट के रूप में हृदय के अंदर से बहुत बड़ा वजन है। या फिर हम कभी कभी हम ये जो अभिमान जो है ना, ये किसी चीज का भी आता है। जैसे बोलते हैं ना, द पॉपर इज अ प्राउड ऑफ हिज पैनी। जो भिखारी होता है ना, वो अपने छोटे 2 रुपए से भी अहंकार, उसको अभिमान आता है। तो या कभी कभी व्यक्ति को अपने पोजीशन का अभिमान होता है कि मैं कोई कोई कंपनी में बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ या बड़ा सीईओ हूँ, या फिर आई एम वॉट एवर इट में भी। या फिर हम जैसे हमारे कृष्णा के हमारे भक्ति के सर्कल में शायद मैं काउंसलर हूँ, या मैं टीएमसी हूँ, या मैं प्रेसिडेंट हूँ, या फिर मैं कुछ इंचार्ज हूँ, कुछ कहाँ का कुछ, तो भी मैं सेंटर का इंचार्ज हूँ। तो एक प्रकार से वजन है ये जो वजन है शकट है ये। और अम, कुछ नहीं तो कम से कम ये सोच ले कि मैं बहुत सालों से भक्ति कर रहा हूँ। ये भी एक प्रकार का वजन है कि मैं सीनियर डिवोटी हूँ। शायद इतनी भक्ति में आगे प्रगति हुई है कि नहीं मालूम नहीं है, मगर ये सोचना है कि मैं बहुत बड़ा सीनियर डिवोटी, बहुत सालों से भक्ति कर रहा हूँ। और इसको में कभी का आप देखेंगे कि बहुत समय से आप थोड़े रहे तो लगता है कि आगे सीनियर डिवोटी बोल देते हैं उसको। तो ये सब है, वो हृदय के अंदर वजन है, तो ये शकट बोलते हैं उसको। या फिर लेजीनेस, शकट को भी कहते हैं कि आलसी जो होता है ना, आलसी होता है एक आलसीपन, उसको भी क्या बोलते हैं इसको, आलसीपन को भी हम ये वजन समझते हैं। और दूसरा चीज है कि दूसरों के प्रति हम एक प्रकार के गलत भावनाएं रखना, जैसे कि किसी के प्रति द्वेष रखना, है ना, या अम, हमारे खुद की प्रतिष्ठा के लिए इच्छा होना, या दिखाना कि मैं दूसरे वैष्णव से कैसे महान हूं। ये सब देखिए, हम बाहर सेवा सब करते हैं, हम बाहर अच्छी सब सेवा करेंगे, वो हृदय के अंदर सब चलता है। देखिए ये सब चीजें ना, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर कोई दिखाएगा नहीं कि हम द्वेष करते किसी से, या हम ये दिखाएंगे नहीं कि मुझे ये सेवा करते हो कि मुझे लोगों ने गुणगान करना चाहिए। तो हृदय के अंदर एक ऐसा अंदर एक इच्छा रहती है कि मेरा लोगों ने गुणगान करना चाहिए कि मैंने ये सेवा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। लोगों को तो मालूम है कम से कम मैं कुछ लोगों से तो ऊपर हूं मैं। तो ये सब क्या है, भार है। भार ये है जिससे, मतलब बेसिकली ये अननेसेसरी भार है, जरूरत नहीं है सर, जो हम नहीं है वो। तो ये जो शकटासुर जो हमारे हृदय के अंदर जो है, वो ये जो अलग अलग प्रकार जो भार है, तो उसको कैसे निकालेंगे फिर अभी, है ना। ये प्रैक्टिकल है अभी, क्योंकि हम जब सब नव सिखे भक्त, जब हम सब साथ में हम जब भक्ति करने का प्रयत्न करें, हम साधना भक्त हैं, हम हृदय के अंदर काम क्रोध मोह मद मत्सर सब है ये है, उसको कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर फिर भक्तों ठाकुर कहते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो भक्तों ठाकुर कहते हैं कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि कृपा करके जो लोड है ना, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत वजन है वो लोड में। कभी देखा होगा ना, ऐसा बहुत बड़ा लोरी में बहुत सारा सामान आया, तो हम नहीं निकाल पाते उसको, हमें किसी की मदद लगेगी निकालने के लिए। तो भगवान को हम प्रार्थना जब भक्तों ठाकुर कहते हैं, यदि हम हृदय से भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपा करके मेरा जो हृदय के अंदर ये जो अननेसेसरी मेरा जो लोड है, अननेसेसरी मेरी जो गलत चेतना है, सब गलत चेतना है सब। हाँ, यह कहते हैं कि ये जीवेर बधाए गधा, जीवेर बनाए गधा, मतलब ये ऐसी चीजें जो जो मुझे अननेसेसरी मुझे भार लेने के लिए मुझे ये कर रहे हैं मुझे। क्योंकि मुझे मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, मेरे मेरे भगवान बोल रहे हैं कि हमें तो नम्र बनना चाहिए, हमें दूसरों को मान देना चाहिए,
खुद के मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मगर मैं एग्जैक्टली उल्टा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता हूँ, है ना। या कभी कभी मैंने कुछ सेवा किया और उसमें मुझे रिकग्निशन नहीं मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये भगवान मैं ऐसा हूँ, पहली बात तो हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा ये है करके। हमें थोड़ा खुद के अंदर, हृदय के अंदर झांकना चाहिए कि मैं जब ये सेवा करता हूँ कुछ किसी को या कुछ कुछ भी भक्ति में, तो मैंने अपने बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैं क्या खुद के बारे में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति सोच रहा हूँ, मैं हूँ क्या हूँ। मेरे गुरु महाराज अपने बारे में क्या सोचते हैं, शिला प्रभुपाद जी अपने बारे में क्या सोचते हैं, और मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे बारे में। जब शिला प्रभुपाद जी देखेंगे हम, एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे लॉस एंजलिस मंदिर में, तो प्रभुपाद जी कहते कि मैं आप सबसे बहुत खुश हूँ। ये शिष्य को बोलते हैं कि मैं और आप लोग जो है मेरे शिष्य ने, मगर मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है मुझे मदद करने के लिए। तो ऐसा करके प्रभुपाद आंखों में आंसू आंसू आता है। तो प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये मेरे शिष्य मेरे हैं। जब प्रभुपाद जी 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनको पूछा कि प्रभुपाद जी अब कोई इच्छा है क्या कुछ? मेरा कुछ इच्छा नहीं है बोले। तो जब हृदय जब हल्का होता है तब उसके अंदर भगवान आते हैं। जब तक हृदय के अंदर हम अपनी उपाधि के साथ रहते हैं तो भगवान बैठेंगे नहीं। जब तक वो जो हमारा जो जो शकट जो है वो इतनी सारी उपाधियों से भरा हुआ है तो भगवान को बैठने के लिए जगह ही नहीं उसके अंदर। इसलिए हमें थोड़ा बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे ही कुछ सेवा करते तो पूछे मैं ये सेवा क्यों कर रहा हूँ, मैं किसके लिए सेवा कर रहा हूँ, मैं इसका कारण क्या है। हम जब प्रश्न पूछेंगे ना तो हमारा जो सारी चीजें बाहर आ जाएगी, हमारी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। हमें ये समझ तो जब मालूम पड़ा, अरे यार मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैं अपने बारे में ऐसा कैसा मैं व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा अपने को ही सम्मान देके नहीं सोचता हूँ। भले हम लोगों को बाहर सम्मान देंगे, but सोचेंगे अंदर कि देखो मैं सम्मान दे रहा हूँ। मतलब ये जब हमें मालूम पड़ेगा हृदय के अंदर मेरे हृदय में इतना सारा बोझा है, और जब लगेगा अरे इसको निकालना पड़ेगा ना तो मैं भगवान उधर हृदय में बैठेंगे नहीं। देखिए जब ये सब चीजें जब हमारे हृदय के अंदर है ना, तब तक हम भगवान को पुकार नहीं पाएंगे, हम भगवान का नाम ले नहीं पाएंगे, हम भगवान की शरण ले नहीं पाएंगे। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी एतम आदम अदपुमान नैवा हतम धातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जब तक ये जो चार चीजें है ना, सुंदरता, ज्ञान, अच्छे घर में जन्मना, या फिर धन, इस सब का जो मद है, जो अभिमान जो है, जब तक हमारे हृदय में होता है उसके और हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भक्त को पैसा नहीं हो, सुंदरता नहीं हो सकती है, मगर वो भक्त अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करता है कि मेरा है करके। जैसे युधिष्ठिर महाराज जो थे वो पूरे विश्व के राजा थे। इतने राजा होने के बाद भी वो अपने आप को कभी उनके संपत्ति का मालिक समझा ही नहीं। ये कैसे मालूम पड़ेगा, कोई बताना चाहेगा कि युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने इतना पूरा विश्व को राज्य किया और उन्होंने कभी भी सोचा नहीं कि ये सब कुछ मेरा है। ये हम कैसे मालूम पड़ सकता है, कोई बताना चाहेगा कोई? मेरा प्रश्न समझ में आया होगा सबको कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो कैसे से मालूम पड़े कि वो उन्होंने कभी भी अपने आप को ये संपत्ति का मालिक समझा नहीं। तो अकिंचन गोचर, जिसके बाद चार चीज नहीं है वही भगवान का नाम ले सकता। मगर युधिष्ठिर महाराज सब थे, वो सुंदर थे सारा। उनके तो लीनियज में कुंती महाराज के बेटे थे, कृष्ण के तो भाई बड़े भाई थे। हाँ, इतने बड़े संपत्ति सब कुछ था, सब ज्ञान सब कुछ था, तो भी उनको अकिंचन गोचर आ गया कि उनका कुछ नहीं। यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my obeisance. So, Prabhuji, from two places which I think of, जहाँ पे ये सोच सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को अकिंचन गोचर कह सकते हैं। एक तो जब वो युद्ध जीत गए थे और धृतराष्ट्र वहां पे थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मुझे इसका अब मैं राजा हो गया हूँ, इतना युद्ध लड़ा, अब मुझे या राज्य देना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए कभी नहीं हट किया। वो धृतराष्ट्र को ही राजा बनाए रखे जब तक कि वो अपने जब तक कि वो संन्यास के लिए नहीं गए। दूसरी चीज, जब उनको ये पता चला कि कृष्ण भगवान नहीं रहे और उन्होंने परीक्षित को सब कुछ सौंप करके वो अपने आप वो लोग दैट वाज एक्चुअल रीजन इफ यू थिंक। अब देखेंगे ना कि बहुत ये दैट्स एक्चुअल राइट आंसर। जैसे ही मान पड़े कृष्ण भगवतम कृष्ण सुदामा भगवान चले गए, तुरंत उन्होंने
अपने आप को छोड़ दिया। उन्होंने भगवे कपड़े पहने और नॉर्थ में चले गए। पीछे देखा नहीं कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। अब सोचिए कितना मुश्किल होगा। इतना बड़ा राज्य जीता है, 64 करोड़ लोगों को मारने के बाद, 36 साल ही हुए, ज्यादा साल हुए नहीं, 64 करोड़ लोगों को मारा है, भगवान ने राजा बनाया है और सब कुछ। अभी कोई उनको कोई मारने वाला कोई शत्रु नहीं है कोई। जैसे मालूम पड़ेगा उन्हें तुरंत, तो इससे उनको अटैचमेंट से मालूम पड़ता है तुरंत। ना उनको राज्य से अटैचमेंट था, ना तो उनके भाइयों से भौतिक स्तर पर अटैचमेंट था। दैट्स व्हाई कृष्णा वांटेड टू मेक हिम एज अ किंग, कि ऐसा जो राजा किंग बनेगा जो अटैचमेंट नहीं करेंगे। तो जब ऐसा हम रहेंगे तो हृदय जब हल्का रहेगा तब भगवान को हृदय में बिठा सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकल लेसन है, हम क्या ले सकते हैं इसमें, कि हम ये हमेशा ये शक्टासुर को निकलने पहले तो हम हमेशा प्रार्थना करें, भगवान मेरा कुछ नहीं है, जो भी है भगवान आपने दिया है। ये बुद्धि आपका है, शरीर आपका है, हाँ ये वाचा आपकी है, सोचने का तरीका आपका। यदि मेरा बुद्धि नहीं चलेगा तो मैं क्या सेवा कर पाऊंगा, मेरा यदि हाथ में पहले तो मैं क्या सेवा करूंगा। इसलिए हमें गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये गीता जो ऐसा किताब है उसके अंदर हमें नम्र बनने के लिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। 5 चीजें लगती है कोई कार्य करने के लिए, है ना। अ, परमात्मा, जो आत्मा, फिर कर्म, समय और प्रकृति। ये 4-5 चीजें होगी तब कोई कार्य होता है। कोई हम बोलेंगे मैंने किया, अरे परमात्मा सैंक्शन नहीं करोगे तुमको क्या मिलने वाला है। परमात्मा जब प्रकृति बोलेंगे तब तुमको क्या मिलेगा। तुम्हारे कर्म नहीं हो तुम कर नहीं पाओगे, समय नहीं हो तुम कर नहीं पाओगे। तो हम जब समझते कि अरे मैं तो एक व्यक्ति हूं, मगर 5 चीजें अवेलेबल है एक चीज में करने के लिए, तो हम जब समझेंगे और करता हम इति अहंकार उड़ाता करता हम इति मनते, हम अहंकारी व्यक्ति सोचते कि मैंने किया करके। यदि हम अपने आप को हम ये रेगुलर हम जब फिलोसफी हम जहाँ पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे जब भक्तों से, तब हमारे मन में रहेगा कि नहीं नहीं मैं इसका कोई करता नहीं हूँ, मैंने नहीं किया है। स्पेशली जब आप कुछ सेवा अच्छा करते हैं और उसके बाद यदि आपको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर, अप्रिशिएट नहीं करता है, और आपके मन में कुछ विचार आता है कि अरे मुझे उसने अप्रिशिएट नहीं किया, उस समय यदि आप भगवान के सामने जाएंगे और आप ये गीता का श्लोक याद कर रखेंगे, अहंकार विमूढ़ता करता हमें प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, सबसे वो गुण के कर्म कर रहे हैं, भगवान ही सब कराते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। और भगवान को यदि आप बोल पाए या सही में तो भूल ही गया था ये तो आप ही करने वाले हैं, तो आपका हृदय एकदम हल्का हो जाएगा। इनफैक्ट जब इंद्र जो थे उन्होंने जब अपने संवर्तक बादल से वज्रासुर को तकलीफ देने का प्रयत्न किया, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया। गोवर्धन उठाने के बाद 7 दिन गोवर्धन उठा के रखा। तो अभी मालूम पड़ेगा भाई इंद्रों का, ये तो मेरे भगवान है, मैंने क्या किया, मैंने सब वज्रासुर को मारने का प्रयत्न किया। तो जब भगवान जब बाहर आते हैं गोवर्धन रखते नीचे, फिर इंद्र प्रार्थना अर्पण, तो कृष्ण बोलते हैं, वो इंटरेस्टिंग श्लोक बोलते हैं, कहते हैं देखो इंद्र, ये मेरी तुम्हारे पे कृपा थी कि तुमको मुझे ऐसा याद दिलाना था कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। यू आर नॉट अ डूअर, मुझे आपको बताना चाहिए, तुम मुझे मेरा स्मरण करने के लिए, मेरा स्मरण दिलाने के लिए तुमको ये परिस्थिति में डाला मैंने। तो कभी कभी यदि हमारे जीवन ऐसा चीज होगा कि यदि हम कुछ ऐसा कुछ सेवा करते हैं आपको कभी ऐसा रिकग्निशन नहीं मिलेगा, दैट इज अ कृष्णा's बेस्ट अरेंजमेंट फॉर यू। उस समय भगवान ने आपको ये सिचुएशन डाला है क्योंकि आप भगवान का याद दिला पाएंगे। यदि हम इतना कर पाए ना कि यदि उस समय यदि आपको रिकग्निशन नहीं मिला उस जिस दिन आपने भगवान को याद किया, यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। हम सर मुझे कैसे नहीं मिला, इसको मिला, मैंने इतना किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, पर मैंने सोचा कि नहीं अच्छा हुआ मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं समझो सोचा हाँ मैंने क्या, हाँ ठीक है मेरा नाम आएगा, मेरा रिकग्निशन होगा, तो फिर मुझे भगवान का स्मरण करने का याद नहीं आएगा। नॉर्मली क्योंकि हम बद्धावस्था में, इसलिए जब नहीं मिलता है तो हम याद करने के चांस ज्यादा रहता है, मिलने के बाद शायद मालूम नहीं हो, बहुत बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे, कृष्णा टेस्टेड मी फर्स्ट बाय नॉट गिविंग एनीथिंग एंड देन कृष्णा टेस्टेड मी आफ्टर व्हेन गिविंग आफ्टर एवरीथिंग टू मी। पहले कृष्ण ने टेस्ट किया मुझे देख के, नहीं देखे कुछ भी, परीक्षा ली मेरी, और बाद में सब कुछ देके परीक्षा ली। तो भगवान दोनों तरफ से परीक्षा लेते। मगर यदि हम भगवान को याद कर पाए उस स्थिति में और भगवान को धन्यवाद बोला कि अच्छा हुआ भगवान कि मुझे ये गीता का एप्लीकेशन करने को मिला, कि अरे मैं तो करता हूँ नहीं, करता तो आप है, मैं खाली खबर अपने आप को सोचता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। सो हमारा हृदय में हल्का हो जाएगा। एंड दैट्स अ टाइम वेयर एक्चुअली वी कैन रिमेंबर कृष्णा। सॉरी मैं आपको एक छोटा सा एक भक्ति ठाकुर ये लिखते हैं, एक छोटा सा पोएम, तो छोटा सा कड़वा पढ़ता हूँ। यदि हृदय भारी भोजे
থাকে তাকে কোমল কৃষ্ণা শেখানা সহিতে না পারে শুইতে না পারে यदि हृदय भारी बोझा থাকে তাকে কোমল কৃষ্ণা সেখানে শুইতে না পারে হৃদয়কে हल्का करो तबे कृष्णा नाचिबे। लेकिन यदि आपके हृदय बोझ से हृदय से भरा हुआ है, वजन है हृदय के अंदर, तो आप कृष्ण वहां सोएंगे नहीं वहां। मगर हृदय जब के हल्का करो, जब हृदय हल्का करेंगे तो कृष्ण वहां नृत्य करेंगे। अब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जो मैं यहाँ बोलूँ जो वैसे मैं भी अपने जीवन में पालन करूं और इसलिए प्रभु जी की जो सेवा उनके मिशन को सेवा कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। I took a little too much more. Sorry. किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछिए आप। He is not just giving theoretical lecture, but he is doing it. तो कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरि बोल। Okay. Thank you so much. हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद की जय। Yes, yes, yes. मोर मुकुट One बंसी minute, वाले प्रभु जी। कृष्ण की जय। जय हो। देखो प्रभु जी ऑलरेडी इतना सेवा करते हैं कि आप वो सोच नहीं पाओगे। कंस्ट्रक्शन का कॉल कभी आता है, कभी प्रसाद है, फिर राधे श्याम बोलेंगे ये करो वो करो, इतना लोड है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा हमेशा आप देखना स्माइलिंग, और उनको भगवान के प्रसाद में इतना टेस्ट है ना। मुझे प्रभु जी ने बोला प्रसाद खा खा के मरूंगा, मुझे मैं बोला था। और उनको प्रसाद कहाँ से, नाथ द्वारा का प्रसाद इतना मिलेगा। कोई ना कोई मतलब प्रसाद में फेंकने उनसे सीखा एक्चुअली। क्योंकि कभी मुझे लगता था अरे यार प्रसाद ज्यादा हो रहा है, बोले क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो हो गया, क्योंकि भगवान के प्रसाद में, और उनका जन्म ही भगवान के मंदिर में हुआ है, हवेली में। उनकी जो माँ है वो नाथ द्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय में रहती है, तो उनका जन्म हवेली में हुआ है, उनका कर्म मंदिर में हो रहा है, और गोइंग बैक टू गॉड होने वाला। और कुछ इसमें डाउट है क्या? कुछ डाउट ही नहीं है। उनका पूरा जीवन उसी में और किसी चीज में नहीं है। सोचिए जिस व्यक्ति का जन्म है मंदिर में हुआ, उसका क्या क्या करने वाला है। तो ललित माधव को रिक्वेस्ट करेंगे कि फिजिकली भी आना है आपको। लास्ट जन्माष्टमी हम आपको समय दे नहीं पाए रथ यात्रा में, तो अभी तो जन्माष्टमी में आपको बुलाऊंगा कभी ना कभी। तो Yes. जन्माष्टमी राधे श्याम प्रभु का प्रभु जी आने वाले हैं, तो ललित माधव प्रभु को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन भी चाहिए और हमें फिजिकली भी यहाँ पे उनका सत्संग चाहिए, ताकि जो क्वालिटी है सेवा की, उनके अंदर एक ही क्वालिटी सेवा भाव, डेडिकेशन, बस वो हमें चाहिए। उसका एक बार बोल मिला तो ये बहुत हो गया। It's not तो like thank you प्रभु for जी को धन्यवाद encouraging me. चाहिए। Thank you. ऐसा नहीं नहीं है, नहीं समय नहीं, लगेगा बहुत, टाइम है अभी। I don't know when it will come. Let us see. एक मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे So कृष्णा। tomorrow Thank you so also much, will Prabhuji. please join tomorrow. Also one of the senior devotees, his guest Gaulila Prabhu. हरे He is कृष्ण also प्रभु। giving. Yes, question है पूछिए, कोई क्वेश्चन है? किसी की आवाज आई थी? Okay. So tomorrow his guest Gaulila will be giving his association to all of us. So please join with the same enthusiasm. Thank you, Lalit Madhav. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you for Hare engaging. हरे Krishna. बोल। Hare Krishna, हरे Prabhuji. Pranam. हरे। Swinly? Yes, हरे yes, Prabhu, yes. जन्माष्टमी को कुछ अनाउंसमेंट है? हरे लेकिन कृष्ण आत्मा प्रभु। प्रभु नहीं। हरे कृष्ण। आत्मा प्रभु नहीं है ना? नहीं किसी को कुछ प्रभुजी। जन्माष्टमी के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कुछ सेवा के बारे में नहीं, मतलब 2 मिनट कुछ कमेंट वगैरह तो बोलिए, क्योंकि ये फोरम उसी के लिए रखा मैंने। मतलब एवरीडे वी कैन हैव सम 5 मिनट डिस्कशन इफ यू वांट,